Hello guys, welcome back to Entrance Yoga. This is Tahira Suprashan. Today we'll be starting with a new topic that is law of contracts. Before moving forward, first we need to know is what is the governing law of contract. The governing law of contract is Indian Contract Act 1872. Moving forward, what is contract? Section 2H of Indian Contract Act says that an agreement which is enforceable by law is contract. सारे वो agreements जो इन law से enforce करा सके वो contract है. But agreement क्या होता है? Agreement define है section 2E में जो कहता है every promise and every set of promises forming consideration for each other's agreement. सारे promise, सारे set of promises जो एक दूसरे की consideration form करते हैं वो क्या है? Agreement. अब promise क्या होता है? Promise defined in section 2B में which states that when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. जब किस पर्सन को प्रपोजल रखा जाता है वो अपना एसेंट सिग्निफाई कर दे तो हम कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया. जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस. वी कैन टेक एग्जांपल कि ए promises to deliver his watch to B. In return, B promises to pay a sum of rupees 2000. यहाँ पे कह सकते हैं ना कि A और B के बीच में agreement हुआ because there's a promise, there's a consideration, right? So agreement हुआ. अब क्या सारे agreement contract होते हैं? No. All agreements are not enforceable by law, so all agreements are not contracts. Only those agreements जो satisfy करते हैं essentials जो section 10 of Indian Contract Act में mention है वही सिर्फ contract होते हैं. लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हैं obviously because agreement which are enforceable by law is contract. So in order to be a contract the basic essential is first it has to be agreement at least, right? हाँ, सो मैंने अभी क्या बोला कि वो सारे एग्रीमेंट्स जो सेक्शन 10 के एसेंशियल्स फुलफिल करते हो वो सारे क्या एग्रीमेंट्स हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. अब सेक्शन 10 क्या कहता है? इट सेज दैट देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो एंड देयर हैज टू बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. मतलब पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे एंड वहां पे पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए. मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्शन के थ्रू कंसेंट नहीं लिया गया है. कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही लॉफुल होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट should not be falling in the category which are expressly declared to be void like wagering agreement not to carry out any profession or business etc. So ये सारे essentials fulfill होंगे तो क्या वो agreement contract होगा? Yes. हाँ, तो मैंने क्या बोला कि वो सारे एग्रीमेंट्स जो सेक्शन 10 के एसेंशियल फुलफिल करेंगे वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट. पहला एसेंशियल क्या था? इंटेंशन टू फॉर्म लीगल रिलेशनशिप. तो हम पहले यही समझेंगे इसका मतलब क्या है. हम बहुत लैंडमार्क केस देखेंगे. कॉमन लॉ का केस है बैफलर वर्सेस बैफलर 1919 का. इसका फैक्ट्स देखते क्या है. हस्बैंड और वाइफ वेंट टू वेकेशन टू इंग्लैंड वेयर वाइफ फेल इल एंड डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक फुल बेड रेस्ट एंड रिमेन इन इंग्लैंड. ठीक है. सो वाइफ स्टेड इन इंग्लैंड. Later on, husband went back to Ceylon where he was employed and he promised that he will send $30 to the wife every month. And as what he promised, he used to send amount for some time and later on it didn't because of some reason. So what wife did is wife went to court to claim that amount जो husband ने promise किया था send करेगा हर महीने वो. But court dismissed this particular petition of wife on the ground that saying that कि ये जो agreement है, ये जो arrangement है, ये सिर्फ एक मोरल ऑब्लिगेशन है वाइफ और हस्बैंड के बीच में और वाइफ और हस्बैंड का कभी कोई इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का. ये केस इतना लैंडमार्क केस है जो बताता है कि हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता है, हर वो एग्रीमेंट जिसमें पार्टी को कोई इंटेंशन नहीं होता है लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. वही एग्रीमेंट जिसमें पार्टी का इंटेंशन होता है लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने का, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट होगा. अब ऑफर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या होता है? ऑफर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में पहला स्टेप होता है. सेक्शन 2A में ऑफर डिफाइन है जो बताता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना विलिंगनेस बताता है टू डू सर्टेन थिंग्स, दैट इज ऑफर. जैसे ऑफरर कौन होता है? पर्सन जो ऑफर रखता है, जो प्रपोजल बना रखता है, प्रपोजल जो
पर्सन हु मेक्स अ प्रपोजल और ऑफर, वो ऑफर कहलाएगा। ऑफरी कौन है? पर्सन जिसको ऑफर दिया गया हो, ठीक है। अब पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है, जब अपना वो एसेंट ऑफ कंसेंट सिग्निफाई करता है, तब एक्सेप्टेंस हो जाता है। वो सेक्शन 2B में डिफाइंड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑफर, जब ऑफर रखा गया, प्रपोजल रखा गया, जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाए बाय ऑफरी, तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में हम क्या चेक करेंगे? उसके एसेंशियल्स चेक करेंगे, तब वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके। सबसे पहला, ऑफर भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे जनरल ऑफर हो गए, ठीक है, फिर इमिटेशन टू ऑफर हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। जनरल ऑफर क्या होता है? जो वर्ल्ड एट लार्ज पे कोई ऑफर रखा जाता है, तो वो जनरल ऑफर होता है। जैसे कार्ल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी बहुत लैंडमार्क केस है। इसमें क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन ने एक मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिसिन ने एक मेडिसिन बनाया था, इसका नाम था स्मोक बॉल, दैट वाज फॉर ट्रीटिंग इन्फ्लुएंजा। एंड उसने ऐड निकाला न्यूज़पेपर में कि वो $100 देगा उन सबको जिसको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा ये मेडिसिन यूज करने के बाद भी, जिसको एज पर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मिस्टर काली ने मेडिसिन खरीदा और उसको यूज किया एज पर प्रिस्क्रिप्शन, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। So he claimed that money in the court of law. कोर्ट ने कहा कि हाँ, the parties had a real intention to form contract with whoever who will accept that general offer. यहाँ पे as such कोई communication of acceptance to the offerer required नहीं होता है, just by fulfilling the condition to the offer of the offer हम ट्रीट करते हैं कि एक्सेप्टेंस हो गया है। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? कोई स्पेसिफिक पार्टी का इंटेंशन नहीं होता है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का। सेलर किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा फ्रॉम पब्लिक, जो उसको बेस्ट ऑफर प्रोवाइड कराएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट स्क्रीमिंग ऑफर 50% ऑफ ऑन ऑल शर्ट्स, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है, ना कि ऑफर है। कोई भी पर्सन जो बेस्ट ऑफर लेके आएगा, सेलर उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेलर ने कोई ऑफर नहीं लगाया है ये बैनर लगा के ऑफर 50% ऑफ ऑन शर्ट्स, ये इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है वो कि तुम मुझे आके ऑफर दो। काउंटर ऑफर क्या होता है? प्रीवियस ऑफर, जो पार्टी ने प्रीवियस ऑफर दिया उसके रिस्पॉन्स में मैं दूसरा ऑफर दे दूं नेगोशिएशन के टाइम पे, तो वो क्या है? एक काउंटर ऑफर है। और काउंटर ऑफर डालने से ही प्रायर ऑफर रिजेक्ट हो जाता है और काउंटर ऑफर की एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रायर ऑफर तो है ही नहीं। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय एन आर्टिकल फ्रॉम अ शॉप एंड दे टोल्ड मी दैट इट्स प्राइस इज 50 rupees. I told them, can you give me in 40 rupees? तो ये मेरा जो 40 रुपीज का ऑफर है, ये काउंटर ऑफर है। अब इट्स अपॉन शॉप ओनर्स डिस्क्रिशन कि वो मुझे 40 रुपीज में दे या ना दे, राइट। कंसिडरेशन क्या होता है? पहला हमने क्या देखा कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट के, हमारा एसेंशियल था इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट और इंटेंशन टू फॉर्म लीगल रिलेशनशिप। सेकेंड एसेंशियल क्या है? देयर हैज टू बी लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। ओके। Consideration is defined in Section 2D of Indian Contract Act, which says that when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing, then such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. जब promisor के desire पे promisee या कोई और person कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, या कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, या प्रॉमिस करता है कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, तो वो एक्ट, वो एब्स्टिनेंस और वो प्रॉमिस क्या है? कंसिडरेशन है उस प्रॉमिस का। मतलब हमने सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न फॉर द ऑफर। एक कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के क्या है? इनवैलिड है। ओके, देयर हैज टू बी कंसिडरेशन, बट कंसिडरेशन का कोई एज सच अमाउंट होता है? डज कंसिडरेशन नीड टू बी एडिकेट? नो, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिकेट, बट इट शुड बी रियल। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। या तो उसने पास्ट में कोई काम किया है, या वो प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है, या वो प्रॉमिस करता है कोई काम करने के लिए, तो ये तीनों ही केस में इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन।
It should not be illegal, immoral or opposed to public policy. Consideration कभी भी illegal, immoral या opposed to public policy नहीं होना चाहिए. Third essential is capacity to contract. देखो, पार्टीज कॉम्पिटेंट तो हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. अब पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी पार्टीज नॉन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. माइनर्स नॉन कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट. माइनर्स वो पर्सन होते हैं जो लेस देन 18 ईयर ऑफ एज होते हैं, ठीक है, दे आर नॉन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड आर नॉन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. जो जिसका अनसाउंड माइंड होता है वो नॉन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ आर नॉन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. जैसे एलियन एनिमीज हो गए, फॉरेन सॉवरेन हो गए, वो सारे डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं in order to form a contract. बहुत ही लैंडमार्क केस है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का इन केस ऑफ माइनर्स, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास कोस. इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज को देता है डिफेंडेंट को, जो कि मनी लेंडर था, इन ऑर्डर टू सिक्योर अ लोन. और डिफेंडेंट को पता था कि प्लेंटिफ माइनर है, ठीक है. कोर्ट ने क्या बोला कि कोई स्टॉपेल नहीं लगेगा, ठीक है, और डिफेंडेंट विल इज लायबल टू रिफंड द लोन जो इस मॉर्गेज में लिया गया है, उसको दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि जो एग्रीमेंट है बिटवीन दैट पर्टिकुलर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट इज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है. मतलब ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो हमने देखा, इन तीनों पर्सन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो है. मतलब पर्सन हु आर माइनर, पर्सन विद अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो सारे क्या होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है. दे आर वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ओके. The other important essential is there has to be valid consent or there has to be free consent. Section 13 of Indian Contract Act says when two person agrees on same thing in same sense, consensus ad idem है तो consent होता है, पार्टी consent दे रही है. जब दो पार्टी सेम थिंग पे सेम सेंस पे अग्री कर रही हो तो, ठीक है, तो उसने consent दे दिया. से कंसेंट हमेशा फ्री होना बहुत जरूरी है. इट शुड नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक एक्सेट्रा की वजह से कंसेंट नहीं दिया हो, ठीक है. कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी. जो एग्रीड पार्टी है, इसका कंसेंट फ्री नहीं है, उसके पास एक ऑप्शन होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन से वो डिस्चार्ज हो सकता है. So it becomes voidable at the option of aggrieved party. That completes our essentials of the valid contract. Next, we'll read types of contract and other important topics of Indian Contract Act in the next video. I'll meet you in next class. That's it for today. Bye bye. Allah Hafiz. Do like, share, and subscribe our channel. We are trying our best to provide you quality material, and yet we are trying to go for something like rapid revision, जहाँ पे तुम्हारे सारे concepts revise हो जाए in very short span of time.